Good morning, students. This is your chapter number 2, Natural Resources. In previous chapter, I have explained you what do you mean by resources. Anything which we can use is known as resources, which help us in somehow is known as resources. In resources, we have done two types of resources. First was natural resources and second was human made resources. Now this chapter will explain you more about in detail what do you mean by natural resources. Natural resources, students, are those resources which are given to us by nature, that cannot be produced, that cannot be made by humans. तो इन नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास इसके 4 टाइप्स हैं. फर्स्ट इज लैंड, सॉइल, वाटर, बायोस्फीयर. इन बायोस्फीयर वी विल रीड अबाउट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, स्टूडेंट्स. नाउ लैंड रिसोर्सेज. लैंड इज वेरी important. Now you will ask, ma'am, why it is important? Because we live on land only, and not only human beings but natural vegetation like plants and wildlife like animals, they also live with us on this land. We perform various activities on land and use it in different ways to fulfill our various economic activities, like we do agriculture, industries, houses, airports, shopping malls. These structures are all are on land only. Student, do you know that only 30% of total area of Earth's surface is covered with land, and out of that 30%, only 90% of world's population occupy only 30% of land area, and rest of the land area is very sparsely populated. Means very few people, those who are living in those areas, are known as sparsely populated areas. Very few, and those who are living, they are very very far away from each other. Now second topic is land use. Land use is nothing but land is used for a variety of different purposes. Like you can say, in the left I have showed you that agriculture, for industry setup, for houses, for airport runway. This picture clearly shows you shopping malls, mining, forestry, roads, railway offices, etc. The use of land is determined by two sets of factors. These factors are basically physical factors and human factors. बच्चे फिजिकल फैक्टर्स कैसे हो जाएंगे? जैसे एक क्लाइमेट, एक जगह का टेम्परेचर जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, वहाँ की सॉइल डिफरेंट रहेगी. कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट. तो यहाँ पर जो लैंड होगी वो फिजिकली डिफरेंट होगी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन फैक्टर्स? सच एरियाज विच हैव मोर पॉपुलेशन, few areas have technologically capability, means वहाँ पर new advanced techniques शुरू ज़्यादा होती हैं. which have the areas which have land, which have economic status, culture and traditions, okay, and different etc. Now land is also divided between two types, that is private and community. It is on the basis of land use, okay. Private, which are owned by individuals, and community, which are for everyone. Land degradation is any change which comes in land, and due to that change the productivity or the quality of land become worse, or you can say that decreases. This happens because day by day population is increasing and population demands are also increasing. Some of the human activities that have led to the land degradation are, सबसे पहला है डिफॉरेस्ट्रेशन, मतलब पेड़ों का बहुत ज़्यादा कट जाना. फिर ओवर ग्रेजिंग, मतलब जब एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा ओवर ग्रेज, ज़्यादा खा जाते हैं फसलों को. माइनिंग, इंक्रीज इन सैलिनिटी, टॉक्सिक इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एज वेस्ट, और desertification means expansion of deserts due to pressure of population.
एंड स्टूडेंट्स, पुअर लैंड होने की वजह से फ्लड के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं एक कंट्री के अंदर. सो वी शुड सेव आवर लैंड. सॉइल इरोजन, एज वी ऑल नो दैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं पर पूरे के पूरे बायोटिक वर्ल्ड के लिए. अब सॉइल इरोजन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर सॉइल एक जगह से दूसरी जगह डिटैच हो जाती, ट्रांसपोर्ट हो जाती है. What are the reasons behind soil erosion? First is deforestation. Trees hold the soil firmly, but when they are cut down, soil easily carried away by the wind or water. Faulty methods of farming. First is plugging. Plugging the land along the slope leads to the easy removal of soil particles by wind or water. प्लगिंग को हिंदी में जुताई भी कहा जाता है, जुताई करना. थर्ड इज फॉल्टी क्रॉपिंग पैटर्न. एक ही क्रॉप को कई सालों तक एक लैंड पर अगर आप बार बार ग्रो करते जाएंगे तो उसकी वजह से उस लैंड के न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल, यू कैन से दैट, निट्रोजीनियस कंपोनेंट्स जो सॉइल के अंदर होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स, वो सब क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से लैंड जो हो जाएगी लेस फर्टाइल हो जाएगी विद इन फ्यू ईयर्स. फोर्थ इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. इस टाइप के कल्टिवेशन के अंदर एक फॉरेस्ट को पूरा खाली किया जाता है कल्टिवेशन करने के लिए, और बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स इसको प्रैक्टिस करते हैं इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट रीजन, और इसको झुम कल्टिवेशन के नाम से भी काफ़ी जाना जाता है. स्टिल अदर ह्यूमन फैक्टर्स लाइक ओवर ग्रेजिंग. स्टूडेंट्स, ओवर ग्रेजिंग होता क्या है? व्हेन वी अलाउ एनिमल्स सच एज काउ टू ईट द ग्रास ऑन एन एरिया ऑफ लैंड फॉर टू लॉन्ग दैट द ग्रास डिसअपियर. धीरे धीरे वो जो घास होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो लैंड होती है वो किसी भी वे में यूज़ नहीं की जा सकती. अब स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे नेचुरल फोर्सेस भी हैं जैसे लैंडस्लाइड्स आ जाना, जिसे भूस्खलन कहा जाता है, हवा की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से और पानी की वजह से भी सॉइल डिटैच होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स होता है. नाउ स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. अब सॉइल को बचाना कैसे है? फर्स्ट मेथड इज एफॉरेस्ट्रेशन. द रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड द सॉइल वेरी टाइटली एंड डू नॉट लेट इट लूज. तो प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन होएगा ही नहीं. नेक्स्ट इज कॉन्टोर फार्मिंग. कॉन्टोर मीन्स काटना, डिवाइड करना. ऑन स्लोपी रीजन्स, ऐसे रीजन्स जहाँ पर ढलान होती है थोड़ी, तो वहाँ पर क्रॉप्स को प्लांट किया जाता है लाइंस के अंदर. ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है. इसकी वजह से क्या होगा? पानी का जो फ्लो होगा वो काफ़ी स्लो हो जाएगा, और पानी के फ्लो होने की वजह से सॉइल जो है वो डिटैच कम होएगी. थर्ड इज़ क्रॉप रोटेशन. एक ही एरिया पे बहुत सारी डिफरेंट क्रॉप्स को उगाना, इसकी वजह से क्या होगा? सॉइल इरोजन बहुत कम हो जाएगा और सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. दैट इज़ नोन एज क्रॉप रोटेशन. नाउ थर्ड इज़ टेरेसिंग. जो कॉन्टोर फार्मिंग है और टेरेसिंग है स्टूडेंट्स, ये वहाँ ये क्रॉपिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर उन एरियाज़ में है जहाँ पर पहाड़ होते हैं. ओके, तो क्योंकि वहाँ पर स्लोपी एरिया होता है, ढलान होती है एरियाज़ में, तो वहाँ पर ये टेरेसिंग काफ़ी अच्छे से की जाती है, जिसकी वजह से वाटर रन ऑफ भी नहीं होता और इरोजन सबसे कम होता है, और इसकी वजह से क्रॉप्स भी बहुत अच्छे से उग पाती हैं, ग्रो कर पाती हैं. नाउ फिफ्थ इज़ बंडिंग. छोटे छोटे बंड्स बना देना, मतलब छोटे छोटे ऐसे एरियाज़ बना देना जैसे कॉन्टोर में ही किया जाता है. मेन इसका रीज़न बनाने का सिर्फ ये है कि वाटर रन ऑफ ना हो, जिसकी वजह से सॉइल भी कंजर्व हो जाती है और पानी की भी कम लागत लगती है. नाउ सिक्स्थ इज़ शटर बेल्ट्स. These are those green belts of trees in coastal और ड्राई रीजन्स पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं, और तेज़ हवाओं की वजह से क्या हो जाता है? वो सॉइल को क्या करेगी? लूज सॉइल को ग्राउंड से उड़ा ले जाएगी. इसीलिए ये शटर बेल्ट्स को
बनाया जाता है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्रॉपिंग आप बीच में करते हो और कोने पर से उसको ट्री से कवर कर देते हो। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स आएंगी वो सॉइल को ईजिली नहीं लेकर जा पाएंगी ग्राउंड से, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज शटर बेल्ट। मल्चिंग। स्टूडेंट्स, मल्चिंग के अंदर प्लांट्स को ऑर्गेनिक मैटर की लेयर से कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका मॉइस्चर है वो सॉइल के अंदर ही रिटेन रहता है। इंटरक्रॉपिंग। एक टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को उगाया जाता है ऑल्टरनेट रोज़ में, और उनको सो किया जाता है डिफरेंट टाइम्स सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम रेन वॉश से। स्ट्रिप क्रॉपिंग। लार्ज फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, और उन स्ट्रिप्स के अंदर डिफरेंट क्रॉप्स को उगाया जाता है। ये स्ट्रिप्स क्या ब्रेक करती हैं? सॉइल इरोजन। एज वी ऑल नो दैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं पर पूरे के पूरे बायोटिक वर्ल्ड के लिए। अब सॉइल इरोजन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर सॉइल एक जगह से दूसरी जगह डिटैच हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है। What are the reasons behind soil erosion? First is deforestation. Trees hold the soil firmly, but when they are cut down, soil easily carried away by the wind or water. Faulty methods of farming. First is plugging. Plugging the land along the slope leads to the easy removal of soil particles by wind or water. प्लगिंग को हिंदी में जुताई भी कहा जाता है, जुताई करना। थर्ड इज़ फॉल्टी क्रॉपिंग पैटर्न। एक ही क्रॉप को कई सालों तक एक लैंड पर अगर आप बार बार ग्रो करते जाएंगे तो उसकी वजह से उस लैंड के न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल, यू कैन से दैट निट्रोजीनियस कंपोनेंट्स जो सॉइल के अंदर होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स, वो सब क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से लैंड जो हो जाएगी लेस फर्टाइल हो जाएगी विद इन फ्यू ईयर्स। फोर्थ इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इस टाइप के कल्टीवेशन के अंदर एक फॉरेस्ट को पूरा खाली किया जाता है कल्टीवेशन करने के लिए, और बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स इसको प्रैक्टिस करते हैं इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट रीजन, और इसको झुम कल्टीवेशन के नाम से भी काफ़ी जाना जाता है। स्टिल अदर ह्यूमन फैक्टर्स लाइक ओवर ग्रेजिंग। स्टूडेंट्स, ओवर ग्रेजिंग होता क्या है? व्हेन वी अलाउ एनिमल्स सच एज काउ टू ईट द ग्रास ऑन एन एरिया ऑफ लैंड फॉर टू लॉन्ग दैट द ग्रास डिसअपियर। धीरे धीरे वो जो घास होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो लैंड होती है वो किसी भी वे में यूज़ नहीं की जा सकती। अब स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे नेचुरल फोर्सेस भी हैं जैसे लैंडस्लाइड्स आ जाना, जिसे भूस्खलन कहा जाता है, हवा की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से और पानी की वजह से भी सॉइल डिटैच होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स होता है। नाउ स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। अब सॉइल को बचाना कैसे है? फर्स्ट मेथड इज़ एफॉरेस्ट्रेशन। द रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड द सॉइल वेरी टाइटली एंड डू नॉट लेट इट लूज, तो प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन होएगा ही नहीं। नेक्स्ट इज कॉन्टोर फार्मिंग। कॉन्टोर मीन्स काटना, डिवाइड करना। ऑन स्लोपी रीजन्स, ऐसे रीजन्स जहाँ पर ढलान होती है थोड़ी, तो वहाँ पर क्रॉप्स को प्लांट किया जाता है लाइंस के अंदर, ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? पानी का जो फ्लो होगा वो काफ़ी स्लो हो जाएगा, और पानी के फ्लो होने की वजह से सॉइल जो है वो डिटैच कम होएगी। थर्ड इज़ क्रॉप रोटेशन। एक ही एरिया पे बहुत सारी डिफरेंट क्रॉप्स को उगाना, इसकी वजह से क्या होगा? सॉइल इरोजन बहुत कम हो जाएगा और सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। दैट इज़ नोन एज क्रॉप रोटेशन। नाउ थर्ड इज़ टेरेसिंग। जो कॉन्टोर फार्मिंग है और टेरेसिंग है स्टूडेंट्स, ये वहाँ ये क्रॉपिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर उन एरियाज़ में है जहाँ पर पहाड़ होते हैं। ओके, तो क्योंकि वहाँ पर स्लोपी एरिया होता है, ढलान होती है एरियाज़ में, तो वहाँ पर ये टेरेसिंग काफ़ी अच्छे से की जाती है, जिसकी वजह से वाटर रन ऑफ भी नहीं होता और इरोजन सबसे कम होता है, और इसकी वजह से क्रॉप्स भी बहुत अच्छे से उग पाती हैं, ग्रो कर पाती हैं। नाउ फिफ्थ इज़ बंडिंग।
छोटे छोटे बंड्स बना देना, मतलब छोटे छोटे ऐसे एरियाज़ बना देना जैसे कॉन्टोर में ही किया जाता है। मेन इसका रीज़न बनाने का सिर्फ ये है कि वाटर रन ऑफ ना हो, जिसकी वजह से सॉइल भी कंजर्व हो जाती है और पानी की भी कम लागत लगती है। नाउ सिक्स्थ इज शटर बेल्ट्स। दीज आर दोज ग्रीन बेल्ट्स ऑफ ट्रीज़ इन कोस्टल और ड्राई रीजन्स पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं और तेज़ हवाओं की वजह से क्या हो जाता है, वो सॉइल को क्या करेगी, लूज सॉइल को ग्राउंड से उड़ा ले जाएगी। इसीलिए ये शटर बेल्ट्स को बनाया जाता है, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्रॉपिंग आप बीच में करते हो और कोने पर से उसको ट्री से कवर कर देते हो। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स आएंगी वो सॉइल को ईजिली नहीं लेकर जा पाएंगी ग्राउंड से, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज शटर बेल्ट। मल्चिंग। स्टूडेंट्स, मल्चिंग के अंदर प्लांट्स को ऑर्गेनिक मैटर की लेयर से कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका मॉइस्चर है वो सॉइल के अंदर ही रिटेन रहता है। इंटर क्रॉपिंग। एक टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को उगाया जाता है ऑल्टरनेट रोज़ में, और उनको सो किया जाता है डिफरेंट टाइम्स सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम रेन वॉश से। स्ट्रिप क्रॉपिंग। लार्ज फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स और उन स्ट्रिप्स के अंदर डिफरेंट क्रॉप्स को उगाया जाता है। ये स्ट्रिप्स क्या ब्रेक करती हैं, फोर्स ऑफ द विंड, हवा के बहाव को काटती हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन बहुत कम होता है।